Good morning, dear students. Today we are going to discuss our new chapter, that is chapter 18, body fluids and circulation. And as you all know, dear students, that our body, or you can say the body of living beings, are made up of thousands of millions of cells. And for proper functioning of our body, these cells require certain nutrients, and whenever they use these nutrients, they also release certain toxic or harmful substances. तो ऑल दीज थिंग्स नीड्स आर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल, है ना। अकेले अपने आप तो चीज़ें सेल से आ जा नहीं सकती हैं, तो यूज़फुल सब्सटेंसेस को सेल तक ले जाना एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल से बाहर ले आने के लिए वी नीड एन एफिशिएंट सिस्टम, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रादर, आई वुड से. And with the help of this efficient transport system, these things can move from one part of the body to the another part of the body. जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं. So in human beings we have the lymph and blood is the liquid. आपको पता है both are the liquids and blood is a special connective tissue. तो ब्लड एंड लिम्फ्स के थ्रू हमारी बॉडी में ये जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट को सेल के अंदर लाना हो या हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल से बाहर ले जाना हो, ये होता रहता है. But in case of the lower organism, because we are the higher animal, but in case of lower animals like sponges, coelentrates, annelids, इनमें कैसे होता है? तो in case of sponges, if you remember that they have the water canal system or water vascular system, you can say. So with the help of water current, they transport the material from inside the body or from outside the body. तो वो वैसे काम करते हैं. So in this chapter we are going to study about the blood and the lymph also, because it is also a part of the chapter. So first we are going to take the blood, and blood is a special connective tissue, as I told you earlier. And what is the special thing about it? Special thing about it is that it is made up of two things. One is the plasma and another is the formed element. So what are the plasma and what are the formed element? So blood plasma, it is 55% of blood, और ये स्ट्रॉ कलर का होता है, बहुत फेंट. स्ट्रॉ कलर मीन्स बिल्कुल स्लाइट येलो कलर्ड लिक्विड है ये. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, वी ऑल नो दैट फॉर्म्ड एलिमेंट मीन्स RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स. दे फॉर्म द ब्लड. तो दैट मीन्स ये दो चीज़ों से मिलकर ब्लड हमारा बनता है. आई हैव ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ चार्ट ऑल्सो. दिस इज द चार्ट, you can see it here. I have given everything. So now the plasma can be divided into so many components, because plasma is a liquid substance, and it is made up of so many things. So basically in plasma there is water and proteins, and proteins contribute to 6 to 8% of it, and various kinds of protein, very new name you have, I think you haven't heard till नाउ. सो देर आर न्यू काइंड्स ऑफ प्लाज्मा, एंड आपको ये अभी मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ. जैसे व्हाट इज़ द प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ water, 90 to 92% of water. And proteins, there are three types of proteins, that is, one is fibrinogen, another is globulin, and third one is albumin protein. And the function of these proteins is also different, and it is important also. They can we can ask this question to you people, that what is the function of fibrinogen? Fibrinogen is the protein which helps in the blood coagulation, that means blood को जमने में help करता है. And what the function of globulins? ये भी protein है. Globulins defense mechanism में काम आता है, that means they engulf or kill the bacteria and foreign particles which come into our body. And albumins helps in the osmotic balance. You know the osmotic balance means the water and salts का जो balance है वो बना के रखने का काम करता है. And also small amount of calcium, magnesium, bicarbonate ions, chloride, these are also present into the plasma. And sometimes glucose, amino acids, lipids are also there. So all these things are present into the plasma, but formed elements are separate. इनके साथ किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं है. These are the form elements, but ये सारे components जो हैं किसके हैं? प्लाज्मा के हैं. तो दैट मीन सब कुछ तो कहाँ पर है आपका? प्लाज्मा में ही है ना. एंड बेसिकली प्रोटीन एंड वाटर, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. एंड बाकी की चीज़ें मैंने बता दिया आपको, सॉल्ट्स हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हैं. एंड सपोज़ हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें, जो ब्लड को क्लॉट करते हैं उनको माइनस कर दें, तो जो लिक्विड हमारे पास बचा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सीरम बोलते हैं. नाउ कम टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. वन बाय वन वी हैव टू स्टडी अबाउट द
form elements, and these form elements we begin with the erythrocytes. erythrocytes सभी को पता है बेटा, it is RBCs, ठीक है, red blood capsules इनको बोलते हैं. And the characteristic features I have just written in very short, but it is given in your book, so you have to study it from your NCERT book. In short, I am going to tell you that erythrocytes are the most abundant, है ना. Formed elements are three: erythrocyte, leukocyte and platelets. So first we are taking the erythrocytes, and erythrocytes are also known as the RBC, and they are मोस्ट अबेंडेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन योर ब्लड. आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो ब्लड के कंपोनेंट की बात मैं करूँ, सबसे ज़्यादा यही हैं. एंड इफ़ वी सी इट इन अ हेल्दी एडल्ट मैन, तो ये 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक हो सकती हैं आरबीसीज़ के अंदर. एंड आरबीसीज़ कहाँ बनते हैं, वेयर आर दे फॉर्म्ड, दे फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स. एंड वेयर दे फाउंड, दे आर फाउंड इन द लॉन्ग बोन्स. हमारे जो हैंड एंड लेग की ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इनके अंदर जो है वो हमारा बोन मैरो होता है. सपोज ये रेड कलर से मैं दिखा दूँ, तो ये अंदर बोन मैरो होता है. दैट मीन्स द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द मैमल्स, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो. तो ये बोन मैरो होता है. एंड सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज में. मोस्ट ऑफ द मैमल्स में एक्सेप्शंस तो हैं हर जगह, बट मोस्टली जितने भी आरबीसीज हैं, इन द इमेच्योर कंडीशन देयर विल बी न्यूक्लियस. इमेच्योर कंडीशन में तो होता है, बट जैसे मेच्योर होती हैं तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है. तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस. एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शंस आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको. एंड द शेप इज़ बाई कनकेव शेप. बाई कनकेव शेप, आप कन्वेक्स एंड कनकेव आप जानते हैं बाय द फिजिक्स, तो बाई कनकेव शेप है इसका. इट ऑल्सो हैव रेड कलर पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन. सबको पता है हीमोग्लोबिन ब्लड के आरबीसी के अंदर होता है, सो दैट इस कलर इज रेड. उन्हीं हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड. वेन एवर HB बाइंड्स विथ ऑक्सीजन इट बिकम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आपने पढ़ा है, एंड दैट्स वाई द कलर लुक्स रेड. तो रेड कलर इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट के लिए होता है. एंड कितना होता है, फिर 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एन हेल्दी इंडिविजुअल. एंड मेजर रोल प्ले करते हैं हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स, आप पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बिकॉज दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना. एंड देयर लाइफ स्पैन इज, मतलब कितने दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं, दे लिव अप टू 120 days ओनली. ये रही है टेल 120 days इनका लाइफ स्पैन होता है, मतलब इनकी लाइफ होती है 120 days की. आफ्टर व्हेन दे बिकम डिस्ट्रॉयड, ये किल हो जाते हैं. और उनको कौन किल करता है, आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड स्प्लीन. स्प्लीन इसको किल करता है सारे को, जो 120 days ओल्ड हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं. दैट्स वाई स्प्लीन इज़ नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसीज. ग्रेव यार्ड मीन्स जहाँ पर हम डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं, उसको बोलते हैं. तो ग्रेव यार्ड बोलते हैं इसको आरबीसीज का, बिकॉज डिस्ट्रॉयड आरबीसीज आर प्रेजेंट हेयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज. लिम्फोसाइट्स भी आप इनको बोल सकते हो. तो दे आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एंड दे आर कलरलेस, है ना. डब्ल्यूबीसी नाम ही उसका पड़ा हुआ है. दे आर कलरलेस. वाई दे आर कलरलेस, बिकॉज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन एंड दे हैव मैनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस. डब्ल्यूबीसीज बहुत तरह के होते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियस होते हैं. सपोज किसी में सी शेप न्यूक्लियस होगा, एंड दूसरा डब्ल्यूबीसी है तो उसके अंदर ऐसे माले की तरह से न्यूक्लियस होगा. एनी अदर है तो उसके अंदर आप ऐसे देखोगे 8 शेप न्यूक्लियस होगा. तो देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द वेरियस काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज. क्योंकि डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो ऑफ वेरियस काइंड्स, एक तरह की सेल नहीं होती, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस यू कैन रिकॉग्नाइज, अदरवाइज आप कैसे पहचानोगे. तो अभी मैं आपको टाइप्स बताऊंगी. एंड दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया. दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड एंड दे आर लेस इन नंबर देन आरबीसी. दैट्स वाई अवर ब्लड इज ऑल्सो लुकिंग रेड, है ना. रेड इसलिए दिखता है क्योंकि आरबीसी ज़्यादा है, ये कम है. दे आर ओनली 6000 to 8000 millimeter cube of the blood and generally they are very short lived, 3-4 days ऐसे worn out हो जाते हैं, फिर दोबारा बनते हैं. and we have the certain categories of it, WBC की, जो मैं आपको बता रही थी कि ये WBC के हमारे पास कुछ categories हैं. तो here are the categories of the WBCs which is given. WBCs are of two type. One is called granulocyte and another is called agranulocyte. What do you mean by granulo and agranulo? Granulo means suppose in the this is the cytoplasm and अगर इसका cytoplasm दानेदार है ना, रफ दानेदार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, granulocyte. and अगर इसका इसमें भी साइटोप्लाज्म है
इसमें ये दानेदार नहीं है, ऐसे प्लेन पूरा साइटोप्लाज्म है, तो इसको हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स मीन्स दाने, जैसे आप सूजी देखते हो ना, एंड सिंपल मैदा भी होता है, तो मैदा इज़ अ ए ग्रेनुलोसाइट एंड आप सूजी समझ लो ग्रेनुलोसाइट, है ना, क्योंकि वो हाथ से आप टच करोगे तो आपको रफ लगती है सूजी। तो उसी तरह से ग्रेन्यूल्स वाला साइटोप्लाज्म है, देन यू कॉल देम ग्रेनुलोसाइट। स्मूथ है बिल्कुल, तो उसको आप क्या बोलोगे, ए ग्रेनुलोसाइट। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट कंफर्टेबली। Then come to its parts. Granulocyte is made up of neutrophils, eosinophils and basophils, and these three, neutrophil, eosinophils and basophils, are the part of WBC, and उसके अंदर भी कौन सा, ग्रेनुलोसाइट। दैट मीन्स इनका साइटोप्लाज्म कैसा बना है, ग्रेनुलर है। तो फर्स्ट इज द न्यूट्रोफिल्स। what is the characteristic features of neutrophils is that they are phagocytic cell. if any foreign particle, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आया, ये उसको क्या करते हैं, किल करते हैं, खा के फिनिश कर देते हैं। एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा हैं आपकी बॉडी में, 60 to 65% यही पाए जाते हैं WBC में। देन कम्स टू द eosinophil, 2 to 3% है, मतलब बहुत थोड़े हैं। एंड दे रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो हेल्प इन द एलर्जिक रिएक्शन। कोई एलर्जिक रिएक्शन हो और आपका ब्लड टेस्ट किया जाए तो हमें यूसिनोफिल ज़्यादा मिलेंगे आपकी बॉडी में, या कोई इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी में यूसिनोफिल्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए आपकी बॉडी में बने हुए होंगे। एंड नेक्स्ट इज़ द बेसोफिल। लीस्ट है ये हमारे पास, लीस्ट अबंडेंट मीन्स कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5 to 1% ही है ये। Then come to the basophils. Basophils again divide into 3: हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन तीनों ही काम आते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। वेन एवर वी गेट एनी स्वेलिंग, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, वुंड हो जाता है, जो स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं। एंड जो स्वेलिंग होती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन, यू कैन से इम्यून रिएक्शन, है ना। इससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि दीज सेल्स आर accumulated there and they fight against the action, वो उनकी पिटाई करके भगाने के लिए आई होती है जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया होता है। तो इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो गुड फॉर अवर हीलिंग पर्पज। देन ए ग्रेनुलोसाइट इज मेड अप ऑफ 2 types of cells, that is lymphocytes. Lymphocytes are again divided into 2 types of cell, very important, next year you have to study it. One is B type cell and another is T type cell. B means जो सेल्स हैं और जो T टाइप के सेल्स हैं, B जो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड T मेक्स द सेलुलर इम्यूनिटी। और ये 2 तरह की इम्यूनिटी हम सबकी बॉडी में होती हैं, सो दैट आवर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। और इनको लिम्फोसाइट बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, एक को टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। एंड दे इन्वॉल्व इन द formation of our immune system. Next year we have to study in detail. And monocytes, next, monocytes are very less in amount, that means 6 to 8% होते हैं। They are also phagocyte, तो मतलब ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोफिल, ये दोनों हो गए हमारे phagocytic cell। that means जो phago means खा जाना, जो कोई भी बाहर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, हार्मफुल, उनको खा जाते हैं और खा के ख़त्म कर देते हैं हमारी बॉडी से। तो दैट मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड की, प्रोटेक्शन किया ना इन्होंने। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द WBC. Now come to the platelets. Platelets is another important thing because it plays important role in the clotting of our blood. तो platelets are also known as thrombocyte. Thrombus means होता है जैसे किसी चीज़ का क्लॉट बन जाना, थ्रोम्बस से वर्ड बना है, क्लॉट बन जाना, जब ब्लड जमता है तो क्लॉट बनता है ना, उससे बना हुआ है वर्ड ये। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल फ्रेगमेंट्स इनको बोलते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। बोन मैरो में स्पेशल काइंड की सेल्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट सेल्स। तो वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो होते हैं वो इनको बनाते हैं, ठीक है। इफ़ आई राइट द स्पेलिंग, दिस इज़ मेगा कैरियो, न्यूक्लियस से वर्ड आया है, कैरियो साइट, CYTES साइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट सेल्स से बनाते हैं। एंड वेयर मेगा कैरियोसाइट्स आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इनटू द बोन्स, ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स, ठीक है। तो बोन्स के अंदर होते हैं। एंड नंबर इनका बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स में होता है, 1 लाख से लेकर के 3 lakhs एंड 3 से ज़्यादा भी कई बारी हो सकता है प्लेटलेट्स का सेल। एंड दे रिलीज वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेज, स्पेशली दो सब्सटेंसेज विच हेल्प्स इनटू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड अगर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। आपने अगर नेम सुना हो, हीमोफीलिया इज़ द नेम ऑफ डिजीज़, वेयर अगर आपको कट लग जाए, किसी इंसान को कट लग जाए, अगर उसको हीमोफीलिया डिजीज़ है तो ब्लड क्या नहीं होता, उसका क्लॉट नहीं होता है, वो बहता रहता है और फिर आदमी की डेथ हो जाती है क्योंकि ब्लड लॉस हो गया।
तो दैट मीन्स ये क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So students, I am going to finish it here, and students, please read it from your NCERT books also and make the notes as I have made myself. So you also read this properly, these notes also properly, and listen the video, because very 1 and 2 marks of small questions can be asked in the examination. And I hope you study it well.